Okay, so today we will continue with the Lindblad master equation, and I will solve two examples in front of you, and then I will ask you to solve one example yourself. So hopefully, with this, you will get an idea that how to use a master equation to study dynamics of quantum system. Of course, we'll do it for single qubits, but the same thing can be done for multiple qubits. But usually, when we go to two or higher number of qubits, we have to resort to a computer to solve for all the components of the density operator. Because for a single qubit, we have a 2 by 2 matrix, so we have to essentially solve for four uh, components of the density operator that might, for a qubit, it corresponds to three differential equations. Because for a single qubit, we need at least three parameters to specify the position vector in the block Paul. And before I begin, I would like to emphasize that there are other master equations as well that are derived from different perspectives, but the idea remains the same. And since there are quite a few, I that it's not possible to include all of them in the course. So I will stop at the end of this lecture discussing master equations, and hopefully, if you need them somewhere in your research, then you can learn other type of master equation if you need to. But even though most of the time you will need the Lindblad master equation that we are studying anyway. But if you do need something else, hopefully you have an idea that how to derive it and how to use it, because the applications remain the same. Then from the next week, we'll go to information theory. Sorry? Mhm. Master, I think I don't actually know or have read it somewhere, but I think it's because it describes the dynamics completely under the given assumptions. कि हम जो Markovian assumption करते हैं. Actually, there is another assumption that I didn't say explicitly, but it's also always there. It's called Born approximation. That we say that when something is happening to the system, we are assuming that the environment is so large and it's memory less that environment stays the same. So under given approximations, it completely describes the system evolution. Perhaps that's why it's called master equation. Okay, so let me put this thing on. अच्छा, आज हम दो एग्जांपल्स करेंगे, दोनों सिंपल हैं, ठीक है. The idea is just to show you the applications, और उसके बाद I'll give you one example to solve yourself. So the first example is phase damping. And I have taken up this example because we studied it with operator sum formalism as well when we were calling it bit flip channel. Okay? Oh, sorry, phase flip channel. So at the end, I'll make a connection with that as well. Phase flip. They're both equivalent. So I'm going to describe the dynamics of a single qubit undergoing phase damping using Lindblad master equation. And then at the end, we'll make a connection with the operator sum method that we used for this phase damping channel. Okay, so when we have to specify problem in the operator sum formalism, we have to specify the cross operators, all of them. And when we have to specify problem in the Lindblad master equation formalism, all we have to do is we have to specify all the Lindblad operators, which is actually one less than corresponding cross operator, because L naught, as you saw, is already taken care of by the normalization condition. So here for the phase damping channel, we have only one operator, L1, which is Z operator. And I have
gamma 1, let me call this gamma 1 as just gamma, and all gammas for greater than 1, let's take them to be 0. And I'm going to take the Hamiltonian to be 0 as well. That the qubit is undergoing only the phase damping, and there is no other, driving force that is being applied to the qubit. You can understand that we are just trying to quantify the effect of environment on the qubit, and when it's just there, and only the environment is causing this phase damping. If you include this Hamiltonian as in addition to this, damping effect, that's equivalent to, for example, saying that what would be the dynamics of the qubit if, let's say, we are trying to apply a gate as well, suppose an X gate, and then there is phase damping because of the environment as well. So in the homework problem, I'll give you a problem where you will have a non-zero Hamiltonian and also a non-zero, Lindblad operators. आपने जो last class में quiz किया था, उसमें I think you had a non-zero H, but everything else was zero, right? Did you? Okay. There's no, driving force, or there's no driving, or nothing that we are applying to the system. हाँ, हैमिल्टोनियन नहीं होता ना कि एक्सटर्नल जो है वो सिस्टम पे हम क्या लगा रहे हैं जी, अदर देन द इन्वायरमेंट। देखिए हमारा जो क्यूबिट है इस पे दो चीजें एक्सटर्नल है, एक इन्वायरमेंट एक्सटर्नल है और एक कोई और हम कोई कंट्रोल यूनिटरी अगर लगा रहे हैं, ठीक है। सो जो कंट्रोल यूनिटरी ऑपरेटर है इट्स कमिंग थ्रू द हैमिल्टोनियन, और जो इन्वायरमेंट है इट्स कमिंग थ्रू द लिंडब्लॉड ऑपरेटर्स। तो लिंडब्लॉड ऑपरेटर्स है, यानी अभी भी कुछ ना कुछ तो एक्सटर्नल आ रहा है, लेकिन एक्सटर्नल यूनिटरी ऑपरेटर जो है वो जीरो जी। नहीं, सिस्टम तो है। देखिए अगर लेट्स से यू हैव अ पार्टिकल, आप उसको ऐसी जगह पे रख दे जहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पार्टिकल नहीं है, बस ये है कि उस पर फोर्स कोई नहीं एक्सटर्नल। हाँ जी जी, लेकिन उसको भी जीरो कर सकते हैं ना आप, लेट्स से इससे के इनिशियल कंडीशन इज जीरो, ठीक है। नहीं देखिए जो हैमिल्टोनियन है ये कहाँ से आता है, इट्स कमिंग फ्रॉम, it's a unitary operator which you can write for example as sum of kinetic energy plus some potential energy, and there's nothing that says that this cannot be a zero or this cannot be a constant, right? हाँ, और वो जो environment उसकी वजह से आ रही है, ठीक है। there's no unitary operator that we are applying, हम इसको भी नॉन जीरो कर सकते हैं, ठीक है। it's just the uncoupling of problem। देखें हमारे पास लिंडब्लॉड इक्वेशन ये है, let me write it। तो इसमें दो टर्म्स हैं, ठीक है, दो ड्राइविंग टर्म्स है, एक ये यूनिटरी पार्ट है और दूसरा नॉन यूनिटरी पार्ट है। तो इन जनरल तो दोनों ही अप्लाई किसी भी सिस्टम पे लग रहे हैं, ये भी है ये भी है, ठीक है। बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग we can switch off one of the thing at one time. For example, in the last problem in the quiz, we switched this thing off, and we are only studying this impact of this term. अभी इस वक्त मैं ये कर रहा हूँ, I'm going to switch this thing off, ठीक है। And in the homework, I'll give you a problem where both this term and that term is present. It's only little bit mathematically more complicated. In general, जो है वो दोनों terms ही apply हो रही होती है। Okay, so let's see what this equation is for this phase damping effect. So क्योंकि हमारे बाकी सारे जो हैं
वो जीरो है. So let's first see what this thing is. So this L1 dagger L1 row anti-commutator is L1 dagger L1 row plus row L1 dagger L1 और L1 dagger जो है वो Z है. So ये भी Z है. So this is Z square. So Z square row plus row Z square. This is identity. This is identity. So this becomes 2 row. और तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी रो डॉट इज गामा जी रो जी माइनस ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई. Which describes the phase damping. ठीक है. Okay, and for single qubit we can write density operator as half identity plus r dot sigma. So अगर इसको आप एक्सपेंड करें तो बन जाएगी आइडेंटिटी प्लस आर एक्स एक्स आर वाई वाई आर जी जी, where r x r y r z are the coordinates of a position vector in the block ball. x y z are Pauli operators. और जो रो डॉट है वो क्या होगा, वो होगा इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया तो ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा और x डॉट और y डॉट और c डॉट ये आ गया. तो अब हम ये करते हैं कि इस रो को और इस रो डॉट को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं एंड वी विल हैव हाफ हाफ दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा. सो इट्स लेफ्ट साइड पे आ जाएगा आर एक्स डॉट एक्स प्लस आर वाई डॉट वाई आर जी डॉट जी गामा जेड रो जेड. तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर क्योंकि वो देखे ना रो के अंदर पहले आई है तो आई पे दोनों तरफ से जेड आएगा तो जेड स्क्वायर हो गया. फिर आगे है आर एक्स एक्स सो जेड एक्स जेड आर वाई जेड प्लस आर जी इज जस्ट जेड क्योंकि जेड इंटू जेड स्क्वायर होगा जेड स्क्वायर 1 हो गया और इसमें माइनस है आइडेंटिटी प्लस आर एक्स एक्स सॉरी ये भी माइनस माइनस आर वाई वाई आर सी ये आ गया. ये इससे कैंसिल हो जाएगा ये आइडेंटिटी है ये इससे कैंसिल हो गया और you can check that this zxz is minus x, this zyz is minus y, which means that we are left with this equation gamma rx minus rx x ये भी minus rx x है so this is minus 2 rx लेकिन ये x डॉट है नहीं x डॉट नहीं so rx x तो ये आ गया minus 2 r y y और जो ये है वो इससे कैंसिल हो जाएगा so this is the equation. अब अगर दोनों तरफ आप x y z की कोएफिशिएंट्स कंपेयर करें तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएंगी आर एक्स डॉट इज इक्वल टू माइनस 2 गामा आर एक्स आर वाई dot is minus 2 gamma ry and rz dot is 0.
So this means that RZ of t is constant, and that constant should be RZ of 0, क्योंकि RZ of t को आप C करते हैं तो वो constant t is equal to 0 पे क्या होगा, RZ of 0, so you will get RZ of 0. So जो हमारा कोई भी state है which is undergoing the phase damping, let's say वो block sphere में कहीं यहाँ पे करके है, तो जिसका जो Z component है it's preserved under phase damping, ये जितना भी है इतना ही रहेगा. Let's now see the solution of this thing. So ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको देखें तो ये है dRx by dt minus 2 gamma Rx. तो इसका सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा Rx is equal to some constant, let's say C1 exponential minus 2 gamma t. So everybody is okay with this solution? I hope कि अब इस ईयर में तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी करने की. अच्छा, अब ये C1 फाइंड करना है तो दोनों तरफ T0 पुट कर दें, तो ये T0 पे ये 1 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा Rx of 0. So ये कांस्टेंट आ गया Rx of 0. So Rx of t is Rx of 0 exponential minus 2 gamma t. Similarly, Ry of t is Ry of 0 exponential minus 2 gamma t. Simple problem, right? Simple differential equations बनी है, we have been able to solve them quickly. And now we have the expressions for Rx, Ry, Rz at each time t. और यहां से अगर देखें इसका मतलब है कि जो टाइम के साथ साथ जो x कंपोनेंट है वो डिके कर रहा है और जो y कंपोनेंट है वो भी डिके कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, which means कि with the passage of time ये जो वेक्टर है ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, दिस विल बी ट्रांसफॉर्म टू दिस थिंग, क्योंकि इसका जो ये x कंपोनेंट है और जो ये y कंपोनेंट है ये दोनों डिके कर जाएंगे एंड दिस वेक्टर विल गो टू दिस पॉइंट. अच्छा, अब अगर आप इसको देखना चाहते हैं डेंसिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में तो रिमेंबर रो ऑफ t इज हाफ I plus R of t dot sigma, which is half 1 plus Rz of t, Rx of t plus iota Ry of t, Rx of t minus iota Ry of t 1 minus R. तो अगर पोजीशन वेक्टर से आप डेंसिटी ऑपरेटर हासिल करना चाहते हैं, दिस इज द रिलेशन. सो ये जो r डॉट सिग्मा है इसको एक्सपेंड कर लें तो यही आएगा ना Rx Ry y Rz. तो इन सबको आप ये XYZ मैट्रिक्स की एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करके इनको इकट्ठा करें तो ये आइडेंटिटी की वजह से 1 आ गया और जो Z में चूंकि इधर 1 होता है तो वो RZ यहाँ पे आ गया. सिमिलरली जो बाकी चीजें, तो ये हमारे पास डेंसिटी ऑपरेटर. अब अगर मैं ये जो Rx Ry Z की वैल्यूज यहाँ पे रखूं तो ये ऑपरेटर बन जाएगा हाफ 1 प्लस Rz ऑफ 0 कांस्टेंट और Rx ऑफ t की जगह पे आ जाएगा Rx ऑफ 0 प्लस आयोटा Ry ऑफ 0 और इनमें से कॉमन आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फैक्टर 2 गामा t Rx ऑफ 0 माइनस आयोटा Ry ऑफ z माइनस 2 गामा t 1 माइनस Rc. इसका मतलब है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ऑफ डायगोनल टर्म्स हैं डेंसिटी ऑपरेटर की वो डिके कर रही हैं और जो डायगोनल टर्म्स हैं वो कांस्टेंट हैं. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डीफेजिंग. ठीक है, क्योंकि यूजुअली जो डेंसिटी ऑपरेटर की ऑफ डायगोनल टर्म्स होती है ना, वी से दैट दे आर रिलेटेड टू द फेज of the state, and these are related to the population densities of different states. And just to give you an idea of the nomenclature, that where it comes from, let's say आपके पास एक state है
कोहेरेंट सुपरपोजिशन स्टेट है। फर्ज करें आई डोंट नो 1/3 स्क्वायर रूट 0 प्लस 2/3 स्क्वायर रूट 1। ठीक है, तो इसका डेंसिटी ऑपरेटर क्या होगा? इसका डेंसिटी ऑपरेटर होगा साई साई, which means 1/3 0 plus 2/3 1 plus 2/9 square root 0 1 plus 2/9 square root 1 0। और इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा 1/3 2/3 2/9 square root and 2/9 square root। अब रफली ये कह रही है जो डेंसिटी ऑपरेटर है कि 33% जीरो स्टेट ऑक्युपाइड है और 66% वन स्टेट ऑक्युपाइड है, अगर आप इस बेसिस में मेजर करें। और ये जो पार्ट है दिस इज एसेंशियली कमिंग फ्रॉम दिस रिलेटिव फेज बिटवीन द टू, कि ये जो नंबर यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी बजाय इसको देखें, लेट्स से psi is 0 33% of time and it's 1 66% of time, तो इसके corresponding जो density operator होगा वो होगा 1/3 2/3 0। So when they are incoherent superpositions, these off diagonal terms are 0, and when these terms are present it means that this is a coherent superposition. So that's why these off diagonal terms are referred to as the phase terms, and these sort of correspond to the population densities of different level. अगर 0 upper level, let's say lower level है or 1 upper level है, so this is giving us the value of the population densities of these states. अब अगर हम यहाँ पे देखें जो वो डेंसिटी ऑपरेटर है जो हमें फेज डैम्पिंग में हासिल हुआ है, तो वी सी कि एज टाइम गोज टू इन्फिनिटी जो हमारा डेंसिटी ऑपरेटर है it goes to this, which means कि not only that our position vector of state goes from anywhere to along z, that it's z component is not changing, but also the state becomes totally incoherent as time t goes to infinity because off diagonal terms goes to 0. जी डायगोनल टर्म्स जो है ये रिप्रेजेंट करती हैं पॉपुलेशन डेंसिटीज को। ठीक है, कि इनको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन द गिवन बेसिस कौन सी स्टेट कितने परसेंट जो है वो ऑक्युपाइड है। तो जो ऑफ डायगोनल टर्म्स हैं दे रेफर टू द फेज, सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ चैनल इज कॉल्ड डीफेजिंग चैनल। कोहेरेंस के ये जो ऑफ डायगोनल टर्म्स है दे रिप्रेजेंट कोहेरेंस, व्हेन दे आर प्रेजेंट इट मीन द स्टेट इज समवट कोहेरेंट। ठीक है, आप इनको देख के ये नहीं कह सकते कि ये प्योर स्टेट है, ओके, रिमेंबर दिस थिंग, बट अगर ये प्रेजेंट है तो देयर इज अ चांस कि देयर इज सम कोहेरेंस। ठीक है, आप एग्जैक्ट जो है अगर आपने देखना है प्योरिटी तो आपको पता है उसका जो टेस्ट है वो ट्रेस रो स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन अगर ये टर्म्स वैसे जीरो है तो आप कुछ किए बगैर ही कह सकते हैं दिस इज इनकोहेरेंट सुपरपोजिशन, देयर इज नो कोहेरेंस। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी ये चूंकि नंबर एक से आप ज्यादा है, इधर भी नंबर इधर भी इसका स्क्वायर लेंगे तो ये नंबर इससे छोटा हो जाएगा, इससे छोटा ऐड करेंगे ट्रेस के लिए तो यू विल ऑलवेज गेट लेस देन 1। सो व्हेन ऑफ डायगोनल टर्म्स आर जीरो given it's incoherent, when off diagonal terms are non-zero there's a chance that they are coherent, there's a chance it's incoherent। जी कोहेरेंस का मतलब यही है कि देखिए आपके पास जो दो डिफरेंट स्टेट्स हैं, आप अगर उनकी सुपरपोजिशन जो है वो कोहेरेंट स्टेट्स हैं, अब तक आप जिसको स्टेट कहते थे तो उसको अब मैं कोहेरेंट स्टेट कह रहा हूँ। ठीक है, तो इनकोहेरेंट जो आपका जो मतलब है वो ये है कि स्टैटिस्टिकल क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मिक्सचर्स हैं। ठीक है, कि लेट्स से
हमें नहीं पता कि स्टेट 0 है कि 1। ये पता है कि या तो 0 है या 1 है, लेकिन ये नहीं पता कि गिवन स्टेट आपके पास जो है वो 0 है या 1। यू ओनली नो प्रोबेबिलिस्टिकली, लेट्स से 33% चांस है कि ये 0 स्टेट है और 66% चांस है कि 1 स्टेट है। ठीक है, सो ये इनकोहेरेंट मिक्सचर है। हाँ, मिक्स स्टेट या इनकोहेरेंट स्टेट जो है उसको हम मिक्स भी कहते हैं या इनकोहेरेंट कहते हैं। ठीक है, और कोहेरेंट का मतलब है कि ये स्टेट है। ठीक है, इट्स लाइक लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ द स्टेट। सो द स्टेट, अगर आप वेक्टर ड्रा करें तो इट्स समवेयर हियर। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ऑलराइट, अच्छा, यूजुअली वी try to characterize that how fast diagonal terms decay and how fast off diagonal terms decay under a given noise process. तो अगर इसमें हम देखें तो जो diagonal terms हैं they are not decaying at all, they are constant. तो इसका मतलब है कि जो T1 है it's infinite. T1 is usually the time that we say it's a depolarization time या population decay time. Okay, yeah, density decay time, something like this. So this T1 is the time that signifies the decay rate of the diagonal terms, and then T2 is the decay time that's it's the decay rate that signifies the decay rate of these two. तो इसका जो decay rate है we see कि जब T जो है वो 1/2 gamma होगा, तो this state this number decays to like 1/e. ठीक है, तो अगर 1/e को आप अपना स्टैंडर्ड बना लें तो T2 is 1/2 gamma. T1 infinite, T2 1/2 gamma. सॉरी, ये जो T2 है, तो जो डी फेजिंग टाइम है वो T2 है, क्योंकि जब टाइम T इतना होगा तो स्टेट वो जो नंबर है ऑफ डायगोनल नंबर इट विल डिके टू 1/e ऑफ दैट वैल्यू। ठीक, जो ऑफ डायगोनल नंबर्स हैं वो इस तरह डिके कर रहे हैं ना। ठीक है, ये C है कोई एट T इज इक्वल टू 0 और उसके बाद इट्स C माइनस 2 गामा T। तो the time at which this decays to 1/c of this 1/e of this number is the time we call the decay time for phase. ठीक है, so जो phase decay time T2 है it's given by 1/2 gamma. So let's compare it to the cross operator representation. Even जो diagonal terms हैं उनका decay rate होता है या population decay time. So in the operator sum representation, the phase damping channel can be represented as with cross operators like this, which means that the channel has the form 1 minus P rho plus P Z rho. And or इस केस में if you work out the position vector after one application of this thing, तो ये आता, यानी कि और मिखा में हमने किया भी था कि जो ब्लॉक वेक्टर है वो इस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है, Rx Ry Rz ट्रांसफॉर्म्स टू 1 minus P कांस्टेंट Rc. अब अगर इसको आप कंपेयर करें जो ब्लॉक वेक्टर चेंज है वहां पे, तो वी कैन सी दैट if 1 minus P is equal to exponential minus 2 gamma T, then this representation and that thing gives the same result.
इसका मतलब है अगर मैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करूं तो ये उधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस 2 गामा के if we have this bit flip channel with the bit flip probability p given as a function of time like this, then this and that are the same. या दूसरे लफ्जों में इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो ये आता है p of t is at t infinity like this. तो इसका मतलब है कि as time increases the bit flip probability increases. Sorry, the phase flip probability increases. जी ये वाली, ये मैंने इसको कंपेयर किया उसके रिजल्ट से, वहां पे वो आर एक्स बन रहा ना, आर एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस दिस आर वाई उसमें, और तो ये 1 माइनस पी जो है ना उसके बराबर आ रहा है। ठीक है, तो जो ऑपरेटर सम में जो प्रोबेबिलिटी थी उसको मैंने रिलेट कर दिया जो रेट है ये लिंडब्लॉड मास्टर इक्वेशन के अंदर। विच बेसिकली सेज कि अगर आपका एक इन्वायरमेंट है जिसका कांस्टेंट रेट है फेस फ्लिपिंग का, तो अगर आप उसको विजुअलाइज करना चाहते हैं एज फेस फ्लिप चैनल या फेस डैम्पिंग चैनल के तौर पे, जिसमें वी रिप्रेजेंट इट एज अ सिंगल क्वांटम ऑपरेशन, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल ऑपरेशन है, तो एज अ सिंगल ऑपरेशन अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो जो फिर ये फेस फ्लिप प्रोबेबिलिटी पी है, दिस वुड बी फंक्शन ऑफ टाइम। अगर आप लेट्स से अभी आपने क्यूबिट यहाँ पे रखी है और आप 1 सेकंड के बाद आके इसको देखते हैं, तो अगर आप इसके रिजल्ट उससे मैच करना चाहते हैं तो आप पी जो है यहाँ पे टी की जगह पे 1 सेकंड एंटर करें, तो जो आता है वो यहाँ पे यूज करें। अगर आप 1 घंटे बाद आके इसको देखते हैं तो देन ऑफ कोर्स यू वुडंट बी यूजिंग द सेम पी, क्योंकि 1 घंटे के अंदर काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि फेस फ्लिप हो चुकी होगी। So that's why the probability is approaching 1 as a function of time. क्योंकि जो ऑपरेटर सम मेथड है, it has only one operation that you have input output, और इनपुट से आउटपुट तक आपके पास जो क्रॉस ऑपरेटर हैं दे आर सिंगल ट्रांजिशन ऑपरेटर ओवर द होल टाइम, जबकि यहाँ पे वी हैव द डायनामिक्स which we have for all time t in between. Any question? No. So let's take another example, the second example for today, और इसके लिए I'm going to take amplitude damping. एंड आवर लिंडब्लॉड ऑपरेटर, सो एम्पलीट्यूड डैम्पिंग होती है कि आपका सिस्टम अगर वन स्टेट पे है तो देर इज सम प्रोबेबिलिटी दैट इट विल डिके टू द ग्राउंड स्टेट। जी क्या जीरो होगा? टी जीरो, ये पी ऑफ टी का जो फॉर्मूला लिखा है, नहीं टी जीरो होगा तो हाँ, तो टी जीरो पे जीरो ही है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 1 माइनस है ना, ठीक है। अच्छा, एम्पलीट्यूड डैम्पिंग हम इस तरह के प्रोसेस को मॉडल करते हैं जिसमें वी हैव समथिंग इन दिस सिचुएशन कि अगर यानी जो हमारा सिस्टम 2 लेवल सिस्टम इस तरह से है कि इसका जो एक्साइटेड लेवल का वो डिके टाइम है, इट्स फाइनाइट, यानी कि अगर आपका सिस्टम ग्राउंड में है इसका ना भी इन ग्राउंड, लेकिन अगर सिस्टम एक्साइटेड में है तो देयर इज सम चांस दैट इट विल डिके टू द ग्राउंड स्टेट। सो इस प्रोसेस को भी से एम्पलीट्यूड डैम्पिंग विच मोस्ट क्वांटम सिस्टम्स अनफॉर्चुनेटली टेंड टू फॉलो, unfortunately for quantum computing, ठीक है, fortunately for all of us because we exist because of the tendency to stay in the ground state anyway. So इस प्रोसेस को
using the Lindblad approach, we can follow it with just this operator, or this is also the annihilation operator, because if you supply it state 1, it will bring it down to state 0. So with this annihilation operator, I can model this amplitude damping process. So with this thing, and again, let me keep the unitary part of evolution to 0. So I'm not concerned with that. So जो master equation हमारे पास आ जाएगी वो होगी gamma L1 rho L1 dagger minus half L1 dagger L1 rho. तो और मैं सिंगल क्यूबिट के साथ काम कर रहा हूँ. सो दिस वुड बी जो रो है ना, let me write it as before. My row is half 1 minus rz rx plus iota ry rx minus iota ry 1 plus 1 minus rz. This is plus. So this is my row. अच्छा, ये L1 जो है ये ऑपरेटर है 0 1, और ये L1 डैगर जो है ये क्या होगा? L1 डैगर इज 1 0, तो ये आ गया 1 0, और इसको खोल लें तो ये बन जाएगा माइनस हाफ, और ये L1 डैगर L1 ये क्या चीज होगी? L1 डैगर L1 इज 1 0 into 0 1, तो ये 0 into 0 is 1, so this becomes 1 1. तो ये आ जाएगा 1 1 into row minus half row 1. समझ आ गई यहां तक? मैं मैट्रिसेस लिखने की बजाय ना, आप इसको मैट्रिसेस से भी कर सकते हैं. बाय द वे, ये L1 को आप ना ये वाला मैट्रिक्स लिख लें, ये आपका L1 हो जाएगा. जो L1 डैगर है वो ये बन जाएगा. ठीक है, सो देन यू कीप रो इन मैट्रिक्स, तो हर चीज मैट्रिसेस फॉर्म में कर लें. लेकिन क्योंकि हमने वो एग्जांपल मैट्रिसेस में की है, तो ये मैं थोड़ा ये दूसरे स्टाइल से करना चाह रहा हूँ, यूजिंग द ऑपरेटर लैंग्वेज. ओके, सो अब ये रो है, तो यहां से रो डॉट हमारे पास क्या आ जाएगी? ये 0 1 रो 1 0 है, तो ये जो एलिमेंट है ये 0 0 वाला है. ठीक है, ये एलिमेंट है 0 1 वाला, तो ये 0 1 है, तो इसके साथ इसका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा. ये है 0 1, इसके साथ भी इसका प्रोडक्ट इधर से 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 इधर आ रहा है और ये इधर 0 आ रहा है, ये 1 आके इधर आएगा तो ये 0 हो जाएगा. लेकिन ये वाला पार्ट है 1 0, तो ये 1 इधर से आएगा तो ये 1 1 ये एग्जिस्ट करेगा, और फिर ये जब ये 0 1 इस पे आएगा तो ये 1 1 हो गया, 0 0 हो गया. फिर ये 0 0 जो है उस जो बाकी बचा है ये इधर से 0 बचा है, ये 0 इधर 1 के साथ भी होगा तो ये फिर खत्म हो जाएगा. तो ये वाली टर्म है 1 1 वाली, तो ये 0 1 इधर से आएगा लेफ्ट से, तो ये 1 1 हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 0 1, और ये जो 0 1 है ये इसके साथ होगा तो 1 1 1 हो जाएगा, तो 0 0. सो यहां से टर्म बच जाएगी 1 माइनस आर जी इंटू 0 0. ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं भी आ रही तो आप इसको खोल के ये वैल्यूट एक्सप्लिसिटली भी कर सकते हैं कि इन चारों में से सिर्फ ये टर्म बचेगी. आप ये देखते हैं माइनस हाफ, ये 1 1 आ रहा है, तो इसके लेफ्ट पे 1 किस किस पे है? इसमें लेफ्ट पे 1 है, इस पे लेफ्ट पे 1 है, इस पे राइट पे 0 है, इसके राइट पे 1 है. तो ये टर्म सर्वाइव करेगी जब 1 1 ऑपरेट होगा. तो इस पे जब 1 1 ऑपरेट होगा तो ये आ जाएगा 1 0 माइनस हाफ 1 0 इंटू आर एक्स माइनस आयोटा आर वाई, और इसके पे भी ये सर्वाइव करेगी, ये टर्म आ जाएगी माइनस हाफ, इसका ये 1 और इसका ये 1, तो
1 1 1 माइनस आर सी, और इधर में ये रो इधर से ऑपरेट हो रही है, तो वो टर्म सर्वाइव करेंगे जिनके राइट पे 1 है। ठीक है, तो राइट पे इसके 1 है और इसके 1 है। अच्छा, वहां पे सर्वाइव करनी थी जिनके लेफ्ट पे 1 है, तो लेफ्ट पे 1 इस पे था और इसके था। ठीक है, और राइट पे 1 इन दोनों के, तो ये दोनों टर्म सर्वाइव कर देंगी। तो ये आ जाएगा माइनस हाफ 0 1 आर एक्स प्लस एयोटा आर वाई माइनस हाफ 1 1 1 माइनस हाफ, ये आ गया। बेटा आपको समझ आ रही? उस्मान जी, आपका नाम उस्मान ही है? उस्तामा, सॉरी। तो यू ओके विद दिस थिंग? ऑलराइट, तो अब जो है वो अगेन हम लेफ्ट और राइट पे जो ये टर्म्स हैं इनके कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, रो डॉट की वैल्यू रखें तो जो डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाएंगी, लेट मी राइट दोस। डिफरेंशियल इक्वेशन आप दोनों लेफ्ट राइट पे कंपेयर करेंगी तो एक आ जाएगी आर जी डॉट गामा इंटू 1 माइनस आर जी। अगर समझ नहीं भी आप लोगों को आ रही तो जब आप अपना प्रॉब्लम करेंगे तो आ जाएगी, क्योंकि उसमें एग्जैक्टली यही चीजें हैं। आर एक्स प्लस एयोटा आर वाई आर एक्स डॉट माइनस एयोटा आर वाई डॉट माइनस हाफ आर एक्स माइनस। ठीक है, तो दोनों तरफ से जब आप वो जो ऑपरेटर वाली टर्म्स है ना, जैसे 0 0 या 1 0 या उनकी जब कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, यू विल गेट दीज थ्री इक्वेशंस। ये तो आसान है क्योंकि ये ऑलरेडी अनकपल्ड है, इसमें सिर्फ आर जी वेरिएबल है दोनों तरफ, राइट। लेकिन ये कपल्ड आ गई है, इनमें आर वाई आर एक्स है, बट फॉर्चुनेटली दे हैव अ वेरी नाइस फॉर्म। अगर मैं इनको ऐड करूं तो ऐड करने से ये कैंसिल हो जाएंगी, ये भी कैंसिल हो जाएंगी, एंड आई विल हैव 2 आर डॉट एक्स, वो 2 उधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा माइनस हाफ आर एक्स, और एक गामा भी इधर है जो मिस हो गया। और इसी तरह अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर लें, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल होगी, ये आ गया 2 आयोटा आर डॉट वाई, और इधर से ये आयोटा कैंसिल ही हो जाएगा, तो फिर वही माइनस हाफ, और ये प्लस हो चुकी है तो माइनस हाफ गामा आर, ये आ गया। ठीक है जी, अब चारों इक्वेशन तीनों इक्वेशन आ गई। अब पहली को सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको अगर सॉल्व करें तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा एक, तो देखिए इसको मैं आराम से लिख सकता हूं 1 माइनस आर जी डॉट, बल्कि चूंकि आर जी बड़ा होता है 1 से हमेशा, तो लेट मी राइट इट एज आर जी माइनस 1 डॉट माइनस गामा आर जी माइनस 1। ठीक है, हाँ नहीं सॉरी, सही क्या, आर जी जो है ना वो छोटा होता है 1।
लेट्स सी, मैं मेरे ख्याल में ये साइन का कहीं पे गड़बड़ किया हुआ, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। क्या आप लोग जब अपना प्रॉब्लम करेंगे तो चेक कर लीजिएगा। तो ये बन जाएगा आर जी माइनस वन डॉट माइनस गामा वन माइनस आर जी। तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा आर जी माइनस वन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल माइनस गामा टी। और कांस्टेंट क्या होगा, टी जीरो पे ये वन हो जाएगा, तो कांस्टेंट आ जाएगा आर जी ऑफ जीरो माइनस वन। तो आर जी ऑफ टी आ जाएगा वन प्लस आर जी ऑफ जीरो माइनस वन माइनस गामा। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। हाँ ठीक है, ओके। तो ये जी सोल्यूशन आ गया, ये सोल्यूशन सिंपल है, ठीक है। तो ये है आर एक्स ऑफ टी एक्सपेंशियल, और साथ में यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो आ जाएगा आर एक्स ऑफ जीरो एक्सपेंशियल माइनस गामा ओवर टू टी। और सिमिलरली जो आर वाई है, इट्स आर वाई ऑफ जीरो एक्सपेंशियल माइनस गामा ओवर टू टी। ये आ गया। और जो रो है वो क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा हाफ आई प्लस आर डॉट सिग्मा विच इज इक्वल टू हाफ वन प्लस आर जी यहाँ पे आता है, तो वन प्लस आर जी, ये आर जी है, तो इसमें वन प्लस करें तो बनेगा टू प्लस आर जी एफ जीरो माइनस वन एक्सपेंशियल माइनस गामा टी। इन दोनों को इस यहाँ पे आ जाएगा आर एक्स ऑफ जीरो प्लस आयोटा आर वाई ऑफ जीरो, ये कॉमन आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस गामा ओवर टू टी। यहाँ पे आ जाएगा आर एक्स ऑफ जीरो माइनस आयोटा आर वाई ऑफ जीरो एक्सपोनेंशियल माइनस गामा ओवर टू टी। और ये आ जाएगा वन माइनस, तो जब वन माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो वन माइनस वन ये जीरो हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस आर जी ऑफ जीरो माइनस वन एक्सपोनेंशियल माइनस गामा, ये आ गया। और इसको आप बेशक वन माइनस आर जी एफ कर लें, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये वन से छोटा होता है, तो ये नंबर जो है वो प्लस ही रहेगा। दिस इज वन माइनस आर जी एफ। अच्छा, आप इसमें देखें, एक तो इसमें फेज भी डिके हो रही है, लेकिन इस दफा इसमें पॉपुलेशन भी डिके हो रही है। और पहली चीज तो देखें कि टी इन्फिनिटी पे क्या होगा। टी इन्फिनिटी पे ये टर्म जीरो हो गई, ये टर्म जीरो हो गई, और ये भी जीरो हो गई, और ये भी जीरो हो गई, सिर्फ ये टू बचेगा और हाफ है, तो हाफ ये, तो ये आ जाएगा वन जीरो जीरो जीरो, विच मेक सेंस राइट। क्यों, क्योंकि इसका क्या मतलब, इसका मतलब यही है कि सिर्फ आपकी ग्राउंड स्टेट एग्जिस्ट करती है। अलबत्ता अब हम जो है वो दो डिके रेट की बात कर सकते हैं। एक है पॉपुलेशन डिके रेट विच इज टी वन, और यहां से वी कैन सी इट्स वन ओवर गामा, और टी टू जो है इट्स टू ओवर गामा, क्योंकि ये गामा ओवर टू है, उसका इनवर्स लेंगे तो टू ओवर गामा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा है ये स्पेशल केस एक बन गया है कि जिसमें जो फेज डिके रेट है ना, इट्स लाइक ट्वाइस द एम्पलीट्यूड डिके रेट या पॉपुलेशन डिके रेट। यूजुअली खैर ये हमेशा इन जनरल दोनों डिफरेंट होते हैं, एंड T2 इज यूजुअली ग्रेटर देन T1। जो फेज डिके है इट्स यूजुअली मच फास्टर देन द पॉपुलेशन डिके, क्योंकि फेज डिके जो है वो इन्वायरमेंट कॉज कर रहा होता है, विच इज नॉट इजी टू आइसोलेट। और जो एम्पलीट्यूड डिके है, अगर आप मेटास्टेबल स्टेट में जाएं तो यू कैन हैव वेरी लॉन्ग, यू नो, हाईली स्टेबल स्टेट। But in general, you know, these two decay rates are different and they may not be equal to like twice each other. Okay, so any questions so far? So you see कि जो master equation approach है, it gives us a different
perspective of the dynamics. जो operator sum formalism है वो have to general, but at one time we only have knowledge of what happens from one step to the next. And if we want to see what is happening in between, we have to shorten our step. That we have to perform those steps one by one, again and again. But here, sometime, for example, here we get analytical results of the dynamics and see what's going on. Okay, so let me compare it with the Krauss operator formalism. So Krauss operator में जो amplitude damping है, we can express it with these operators, and this is actually equivalent to bit flip as well. और इसमें जो position vector है block ball के अंदर, it's given by this. I think there's something here as well. अच्छा, और अगर इसको हम कंपेयर करें इसके साथ, तो 1 minus p square root is potential minus gamma by 2t, which means कि square ले लें तो p is 1 minus potential gamma t. तो इसका मतलब है अगर आप क्रॉस फॉर्मलिज्म से लेट्स से ये जो डायनामिक प्रोसेस है इनको स्टडी करना चाहते हैं, तो यूजुअली जो प्रोबेबिलिटी है इट्स फंक्शन ऑफ टाइम. यानी अगर आप डिफरेंट टाइम में डायनामिक्स देखना चाहते हैं, तो टू मैच इट टू रियल फिजिकल प्रोसेस यू हैव टू चेंज प्रोबेबिलिटी एट ईच स्टेप. उसकी वजह है, देखें फर्ज करें आप के पास एक सिस्टम है, वो ये इसी की बात करते हैं एम्पलीट्यूड डैम्पिंग की. आपको नहीं पता कि वो एक्साइटेड स्टेट पे है या ग्राउंड स्टेट पे है, बट यू हैव सेट अप सम ऑब्जर्वेशन डूम अराउंड इट, जो कि इन्वायरमेंट को मेजर करता है. इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट इज वैक्यूम. और मेजरमेंट में क्या हम करते हैं, एट ईच पॉइंट वी वांट टू सी इफ देयर इज अ फोटॉन और नॉट. सपोज देयर इज नथिंग एल्स इन द यूनिवर्स, वी हैव आइसोलेटेड इट फ्रॉम द रेस्ट. तो हम क्या करते हैं, लेट्स से इन 1 सेकंड वी गो टू द काउंटर एंड सी कि फोटॉन मिला कि नहीं मिला. अगर फोटॉन मिला है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सिस्टम फोटॉन मिलने से पहले एक्साइटेड स्टेट में था, बट राइट नाउ इट्स डेफिनेटली इन द ग्राउंड स्टेट. हमारा जो नॉलेज है सिस्टम के बारे में वो चेंज हो गया. परफेक्ट. बट लेट्स से यू केम बैक आफ्टर 1 सेकंड, यू डिडंट फाइंड अ फोटॉन. अब आप क्या कहते हैं? स्टिल वी से ओके, देयर इज अ चांस कि सिस्टम एक्साइटेड में है, देयर इज अ चांस कि सिस्टम ग्राउंड में है. लेकिन अब जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी इस चीज की बढ़ गई है कि वो ग्राउंड में है, क्योंकि अगर 1 सेकंड में आपको कुछ नहीं मिला तो इससे उससे पहले आपने जितनी भी प्रोबेबिलिटी, आपने लेट्स से कहा था कि 30% चांस है वो एक्साइटेड है और 70% है कि ग्राउंड है. अब जो है 1 सेकंड अगर आपको कुछ भी नहीं मिला, इवन देन यू मॉडिफाई योर स्टेट, यू से कि अब प्रोबेबिलिटी ग्राउंड स्टेट में होने की ज्यादा होगी है. अब फिर 1 सेकंड के बाद आते हैं, यू स्टिल डोंट फाइंड अ फोटॉन, and then you keep modifying your state after each second, and maybe if after infinite time, after a very long time, you still don't find a photon, then you say okay, the system is in ground state. ठीक है? So it means, और अगर आप हर स्टेप पे क्रॉस ऑपरेटर डिफाइन करना चाहते हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी है ट्रांजिशन की, you will have to modify that at each step. So that's why जो क्रॉस ऑपरेटर फॉर्मलिज्म में जो प्रोबेबिलिटी p है ट्रांजिशन की, that is in general time dependent. और अगर हम रेट्स की बात करें जिस तरह हम मास्टर इक्वेशन में करते हैं, then we don't have to worry about probability being time dependent. Even with constant rate, we can see the phase and population dynamics of the density operator as a function of time. Okay, any question? If not, so I would actually like you to model the inverse
process of the amplitude damping, and that process is called absorption. और इसका जो Lindblad operator है वो ये, because it takes the ground state to the excited state. So for this operator, I want you to find me the density operator as a function of time. ये जो मैंने एंड पे जैसे ये वाला निकाला ना उस प्रोसेस के लिए, एम्पलीट्यूड डैम्पिंग के लिए या डिके के लिए, आपने वही जो डेंसिटी ऑपरेटर है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फॉर दिस अब्जॉर्प्शन प्रोसेस फाइंड करना। जी सर नहीं अभी करना, नमाज पढ़ लें आप, नमाज पढ़ के करना।